Hello students, welcome back to our YouTube channel Physics Aajkal. This is Aman Anis Khan and in this video lecture we are going to discuss some very important points related to projectile motion. In the previous video lecture we have already discussed all the theoretical concepts related to projectile motion. Okay, so let's get started. So before starting the lecture we are going to discuss the formulas related to this concept. And in projectile motion, the first important point was maximum height. So what was the formula of maximum height? We have already derived in the last class. Maximum height h is u square sin square theta upon 2g. याद रखना है h is u square sin square theta upon 2g. Second is related to time of maximum height or we can say time of ascent. ठीक है, so time of ascent, time of maximum height was u sin theta upon g. यहाँ u initial speed है, theta angle of projection है and g acceleration due to gravity. Now moving to the third point. Third is related to time of flight. Clear? So what was the time of flight? Formula of time of flight 2u sin theta upon g. हम जानते हैं कि जो time of flight है, time of flight is basically related to the twice of. Time of flight is twice of time of ascent. ये इसका दुगना होगा. So time of flight is 2u sin theta upon g. Next formula is related to range. Next formula is related to range and range r is given by u square sin 2 theta upon g. दोनों फॉर्मूले को मिक्स नहीं करना है. दिखने में काफी कुछ सिमिलरिटी है पर डिफरेंस भी है. h is defined as u square sin square theta upon 2g. यहाँ स्क्वायर है और अगर यहाँ ध्यान से देखें हम तो यहाँ पर sin 2 theta है, यहाँ स्क्वायर नहीं है. This is u square sin 2 theta upon g. Okay, so these are some important formula related to projectile motion. ये सारे याद होने चाहिए और उसके बाद हम कुछ questions और कुछ important topic हम discuss करेंगे. वहीं मैंने एक maximum range से related भी concept discuss किया था. तो maximum range का formula भी याद हो गया होगा. maximum range का formula होता है r is equals to v square upon g. उस केस में sin 2 theta को हम maximum consider करते हैं. maximum value of sin 2 theta काफी सिंपल है, 1 होगा और उस केस में 2 थीटा 90 डिग्री के इक्वल होता है और थीटा इक्वल होगा किसके 45 डिग्री के. सो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए. तो अब हम इस क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स और एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस question number 1. We are taking is this concept as a numerical, as a question. So question number 1 is range is same. ये first concept है आज की क्लास का. So range is same for a given projection speed, for a given initial velocity, we can say for a given initial velocity for two different projection angles, for two different projection angles which are equally greater or less than 45 degree. So this is the first concept related to projectile motion which we are going to learn in this class. So what is the concept? The concept is, मैं सिंपल डेफिनेशन इसको तरीके से डिफाइन करता हूँ. यानी जो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो दो प्रोजेक्शन एंगल के लिए सेम होती है और वो दोनों प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री से जितना एक ज़्यादा है उतना ही दूसरा कम होना चाहिए. क्लियर? लेकिन इस केस में हमें याद रखना है कि जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो चेंज नहीं होगी. यानी एक ही स्पीड से हम दो अलग अलग एंगल पर थ्रो करें तो हमें रेंज सेम मिलेगी. हमें ये देखना है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है. हमें प्रूव करना है कि क्या ये किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है. ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज कि अगर हम सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट O, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को सपोज 30 डिग्री पे थ्रो किया u स्पीड से
एक ऑब्जेक्ट को हमने 60 डिग्री पे थ्रो किया यू स्पीड से, दोनों जाके एक ही पॉइंट बी के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के लिए रेंज कैसी है, सेम है। इन्होंने दो अलग अलग पाथ लिए, यू दोनों के लिए सेम था और एंगल एक के लिए सपोज 30 था, दूसरे के लिए 60 था। 30 और 60 दोनों 45 से रिलेटेड है। 30 45 से जितना कम है, 60 45 से उतना ही ज्यादा है। ओके, सो हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ। इसको रिलेट करने के लिए सपोज जो थीटा 1 है उसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो 45 प्लस थीटा है, और सेकेंड एंगल थीटा 2 है, इसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये 45 माइनस थीटा है। तो अगर हम कोई कॉमन एंगल लेके इसको प्रूव कर देंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी रेंज कैसी रहेगी, सेम। काफी सिंपल। अगर हम रेंज के फॉर्मूले की बात करें, चलो पहला पॉइंट सब डिस्कस करते हैं। इस एंगल के लिए r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी। आई थिंक क्लियर है। सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ये रेंज का फॉर्मूला है, यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, यहाँ रिलेट कर देते हैं इसको। So according to this formula, we are going to put the value of theta 1 here. So range is equals to u square sin 2 into theta 1. Clear? So चलो लिखते हैं 2 into 45 plus theta divided by g. So r is equals to u square sin 90 plus 2 theta upon g. Sin 90 plus 2 theta. Sin 90 plus theta is cos theta. So r, from first concept we are going to define r here. मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे। So r हम देख रहे हैं, r यहाँ कितना मिला, r is u square cos 2 theta upon g. Clear? चलो थीटा 2 से डिस्कस करते हैं। So second concept जो कि थीटा 2 से रिलेटेड है, उसके लिए r डैश, यहाँ मैं r डैश ले रहा हूँ। r डैश is equals to u square sin 2 theta 2 upon g. U square sin 2 theta 2 upon g. So r dash is equals to u square sin 2 45 minus theta divided by g. In next step, r square is equals to u square sin 90 minus 2 theta upon g, and r dash is equals to u square again cos 2 theta upon g, because we know sin 90 minus theta is also equals to cos theta. So sin 90 plus theta भी cos theta होता है, sin 90 minus theta भी cos theta होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से sin 90 plus 2 theta भी cos 2 theta हुआ और sin 90 minus 2 theta भी cos 2 theta हुआ। Now we can see this was equation number 1, this is equation number 2. From equation 1 and equation 2 we can say r is equals to r dash. So the concept is true, and the concept is range is same for two angles which are equally greater or less than 45 degree. Clear? So अगर एक एंगल 30 डिग्री है, अगर हम उसी सेम स्पीड से 60 डिग्री पर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो रेंज हमें सेम मिलेगी। इसी ठीक कॉन्सेप्ट से अगर सपोज मैं कहता हूँ एक एंगल अगर 40 डिग्री हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 40 के लिए नेक्स्ट एंगल कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 40 45 से 5 कम है तो उससे 5 ज़्यादा कितना हो जाएगा 50। यानी 40 और 50 ये दोनों जो एंगल हैं इनके लिए भी सेम प्रोजेक्शन स्पीड पर रेंज होगी, कैसी सेम। क्लियर? सो दोनों जो ये एंगल हैं इनका टोटल हमेशा कितना रहता है, इनका टोटल हमेशा 90 होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। कई बार एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो एक सिंपल न्यूमेरिकल ले रहे हैं, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हमने सीखे हैं लास्ट क्लास में, वो फॉर्मूले को किस तरह से यूज में लेना है डायरेक्ट, वो हम डिस्कस करते हैं पहले। सो एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल। दिस इज सेकंड कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। सो दिस इज सपोज एक प्रोजेक्टाइल गिवन है, सपोज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहाँ ये इनिशियल पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट को हमने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है और 30 डिग्री एंगल पर। सो प्रोजेक्शन एंगल इज 30 डिग्री एंड द स्पीड, इनिशियल स्पीड और प्रोजेक्शन स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड। नाउ इन दिस क्वेश्चन we have to find out the maximum height, we have to find out the time of flight, we have to find out the range. Clear? So इस क्वेश्चन से सिंपल प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो मैं इसे दो मेथड से समझाऊंगा।
फर्स्ट मेथड जो होगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा और सेकंड मेथड जो होगा वो पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। और एक्सप्लेनेशन वाला फॉर्मूला या एक्सप्लेनेशन वाला तरीका इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आएंगे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ गए तो ही फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, अदरवाइज हमें बेसिक्स आने चाहिए और हमें बेसिक्स आते हैं। हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कंप्लीट डेरिवेशन डिस्कस किया था। ओके, सो द फर्स्ट मेथड we are going to discuss, we are going to solve this question. So from first method, h formula of h is u square sin square theta upon 2g. value place करो, u square it is 20 square into sin 30 square, sin square theta यानी sin 30 का square upon 2g, g कितना है यहाँ 10, 2 into 10. so h is equals to u square 20 square 20 into 20 into sin 30 1 by 2 square divided by 20, ये 20 से कैंसिल आउट हुआ. h is यहाँ हम इजीली देख सकते हैं 20 और 1 by 4 यानी ये हो जाएगा 5. h is 5 meter. so maximum height in this question is 5 meter. second, time of flight. time of flight tf is equals to, time of flight formula is 2u sin theta upon g, 2u sin theta upon g. so time of flight is 2, u is 20, sin theta is sin 30 divided by g 10. clear? so g की वैल्यू 10 ले रहे हैं हम. so time of flight is, ये हम कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट होगा 2 into 2 into sin 30 is 1 by 2. so time of flight is 2 second. clear? so time of flight कितना होगा यहाँ, only 2 second, ये time of flight होगा. थर्ड, रेंज हमें कैलकुलेट करना है. रेंज के लिए फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 theta upon g. range is u square sin 2 theta upon g. put the value of u here. so this is 20 square, we can write it as 20 into 20. this is going to be sin 60, sin 2 theta, 30 into 2 60, sin 60 divided by g, g is 10, ये cancel out हुआ यहाँ, 20 into 2 40 into sin 60 root 3 divided by 2. so range is 20 under root 3 meter. so this is the range in this concept. clear? so this is the question number 2 जो कि हमने बेसिक फॉर्मूले को यूज करते हुए डायरेक्ट सॉल्व किया है. अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सप्लेन मेथड से. ठीक है ना, हम इक्वेशन से इक्वेशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इन अ प्लेन. हम इक्वेशन यूज करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो मूविंग टू द सेकंड मेथड. तो सेकंड मेथड से रिलेटेड सो क्वेश्चन में हमें गिवन है इनिशियल स्पीड जो है प्रोजेक्टाइल की दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. एंगल जो है दैट इज 30 डिग्री. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट. ओके, सो फर्स्ट मैक्सिमम हाइट. ठीक है, सो पहले हमें इक्वेशन को यूज में लेना है. मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि ये भले ही मोशन इन अ प्लेन है पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की तरह ही है. पहले हमें ये डिस्कस करना होगा यहाँ इस क्वेश्चन में कि हमें इससे रिलेटेड सबसे पहले कि कौन से एक्सिस से या किस डायरेक्शन में डिस्कस करना चाहिए और कौन कौन सी वैल्यूज उस डायरेक्शन में गिवन है. सो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है तो हम इस क्वेश्चन को कौन से डायरेक्शन के लिए डिस्कस करेंगे, वाई डायरेक्शन. हाइट की बात हो रही है, वाई डायरेक्शन से डिस्कस करेंगे. और वाई डायरेक्शन के लिए कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट O to A. क्लियर? सो मैं इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ. हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ जरूर किया था. ये कंप्लीट मोशन हो जाएगा इसके लिए. सो दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A and this point is B. Clear? So we are going to discuss from O to A. This is maximum height. Yeah? So this is maximum height O to A. Okay, अब हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे. Y मूवमेंट के लिए हमारे पास इनिशियल स्पीड है uy. uy कितना होगा, अगर ये u है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे. ये कंपोनेंट होगा ux और ये जो कंपोनेंट है ये होगा uy. और uy कितना होगा, u sin थीटा. हम जानते हैं y कंपोनेंट थीटा से दूर वाला कंपोनेंट है, ये u sin थीटा होगा. u is 20, sin थीटा is sin 30. क्लियर? चलो 20 sin 30 एक स्टेप बढ़ा लेते हैं. और इट इज इक्वल्स टू 20 into 1/2. तो कॉन्सेप्ट कितना हो गया, uy इनिशियल स्पीड कितनी आ गई,
इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। चलो यू वाई इनिशियल स्पीड है। अगर हम ए पॉइंट के लिए बात करें या इस डिस्कशन के लिए बात करें तो वी वाई कितना हो जाएगा, जीरो। वी वाई जीरो क्यों होगा, क्योंकि एट पॉइंट ए ये दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट y वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। सो यहाँ y वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन की बात करें तो हम जानते हैं माइनस जी होगा, यानी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस जी क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है तो उस कॉन्सेप्ट में एक्सेलरेशन कैसा लिया जाता है, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। और फाइनली हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि h चाहिए। ये यहाँ टाइम की कोई बात नहीं है, यानी वी हैव टू यूज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और थर्ड इक्वेशन से अगर हम बात करें तो फॉर्मूला है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। y की फॉर्म में कन्वर्ट करो, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। क्लियर। सो y डायरेक्शन के लिए vy स्क्वायर कितना है, 0। uy स्क्वायर इज 10 स्क्वायर प्लस 2a acceleration is minus 10 and sy is maximum height. Clear? So this will become maximum height. So from here we can write 0 is equals to, next step यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 100 minus 2 into 10 20h, 100 minus 20h. So h is equals to, 20h is equals to 100 and h is 5 meter. ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से भी डायरेक्ट किया था, और यहाँ हमने थर्ड इक्वेशन को, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की थर्ड इक्वेशन को काम में लिया। तो इस न्यूमेरिकल से हमें ये भी आइडिया लग रहा है कि इक्वेशन की हेल्प से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर। सो इन सेकंड कॉन्सेप्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। सो टाइम t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, साइन t जो है वो क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके, अगेन वी विल डिस्कस y डायरेक्शन, क्योंकि रेंज में ही x डायरेक्शन का डिस्कशन होता है, तो यहाँ भी हम y डायरेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। सो tf इज इक्वल्स टू कितना है, अगर हम यहाँ देखिए, सो tf हमें कैलकुलेट करना है टोटल टाइम। यहाँ हम कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे, हम O to B बात करेंगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब शुरुआती पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, यानी O to B। चलो और देखते हैं। सो t इज इक्वल्स टू tf। सो नेक्स्ट इनिशियल, वी नो इनिशियल स्पीड uy इज 10, हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। इनिशियल स्पीड y स्पीड कितनी है, 10। फाइनल y स्पीड नहीं बोल सकते क्योंकि b पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट, y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। लास्ट क्लास में भी मैंने क्लियर किया था, अगर हम O to B की बात कर रहे हैं तो x डिस्प्लेसमेंट रेंज के इक्वल है, पर y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां इनिशियल था वापस उसी प्लेन में आ गया है। यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा और B पॉइंट पर भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0, t u इनिशियल स्पीड sy, दिस इज y डिस्प्लेसमेंट, और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। इसके अलावा एक्सेलरेशन है हमारे पास, और माइनस g। एक्सेलरेशन कितना काउंट लेंगे, माइनस g, यानी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। सो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, और सेकंड इक्वेशन हम काम में लेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। sy डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, uy कितना है, 10, t कैलकुलेट करना है, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ इंटू ay है माइनस 10 इंटू t होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। सो 0 इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस 5 tf स्क्वायर। 5 tf स्क्वायर को यहाँ ले आओ, 5 tf स्क्वायर इज इक्वल टू 10 tf। सो यहाँ एक tf से एक tf कैंसिल आउट हुआ, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 सेकंड। यही हमने फॉर्मूले से डायरेक्ट किया था, और यही हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से भी डायरेक्ट किया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 सेकंड। ओके, सो नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रेंज कैलकुलेट करते हैं, और रेंज तो x डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। लास्ट क्लास में भी हमने क्लियर किया था ये। थर्ड इज रेंज। ओके, रेंज को r से डिनोट करते हैं, और रेंज को सॉल्व करने के लिए कौन सी डायरेक्शन, x डायरेक्शन। कहां से कहां तक, O to B, पूरा ही डिस्कस करना है ऐसा, ठीक है ना। O to B, सो O to B के लिए सॉल्व करेंगे। रेंज जो है x डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड, यानी कि x स्पीड इनटू टाइम, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट।
Distance is equals to speed into time. Okay, so what is ux? Ux is u cos 30 into tf, time of flight. Time of flight is 2 seconds. What is the value of u? U is 20, cos 30 is root 3 by 2 into 2. Clear? So ये 2 कैंसिल आउट होगा और आंसर होगा 20 under root 3 meter. This is the range of that projectile, or you can say horizontal range of that projectile. So this is the answer of second question number 2. क्लियर? और हमने ये दोनों मेथड से डिस्कस किया. जो पहला मेथड था वो डायरेक्ट फॉर्मूले रिलेटेड था, और जो दूसरा मेथड है इस मेथड में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज में लिया है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर? So next question, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे. ठीक है ना? क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन इज a person can throw a ball up to a distance 80 meter. Find the maximum height of the ball. क्वेश्चन इस तरह से है कि एक पर्सन एक बॉल को 80 मीटर डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है, तो इस सिनेरियो में बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी. क्लियर? सो देखते हैं क्वेश्चन की कंडीशन में. सो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पर्सन, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो 80 मीटर डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है. हमें लगा है कि यहाँ क्वेश्चन में रेंज गिवन है या मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज, यानी एबिलिटी गिवन है. क्वेश्चन में पर्सन की एबिलिटी गिवन है. जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें लगता है रेंज गिवन है, और जो थीटा है वो गिवन नहीं है. लैंग्वेज में कहीं भी थीटा मेंशन नहीं है, पर थीटा लैंग्वेज के अंदर छुपा है. सो क्वेश्चन में लिखा था ए पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ डिस्टेंस 80 मीटर. क्लियर? सो इसका मतलब ये उसकी एबिलिटी है. एबिलिटी मतलब ये उसकी मैक्सिमम रेंज है. सो वी नो इन दिस क्वेश्चन मैक्सिमम रेंज इज गिवन. तो यहाँ ध्यान रखना, थीटा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर छुपा है और आर मैक्सिमम कितना गिवन है? 80. और लैंग्वेज से हमें पता चला क्योंकि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम रेंज में थीटा कितना होता है? हम जानते हैं थीटा कितना होता है? 45 डिग्री. क्लियर? सो आर मैक्सिमम रेंज इज 80, थीटा इज 45 डिग्री. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज? u स्क्वायर अपॉन g, एंड u स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल्स टू 80. हमने मैक्सिमम रेंज के फॉर्मूले से या फर्स्ट इक्वेशन डेराइव कर लिया है कि ये 80 होगा. हमसे पूछा गया है कि इस सिनेरियो में या इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी. तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. सो इस केस में मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी? u स्क्वायर. सो देखो 2 को मैं अलग लिख रहा हूँ 1/2. इस फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं. u स्क्वायर अपॉन g, मैं डायरेक्ट वैल्यू इक्वेशन 1 से रखूंगा इसलिए मैंने उसको अलग तरीके से लिखा, और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा यानी कि साइन 45 का स्क्वायर. क्लियर? सो मैक्सिमम रेंज h कितना हो जाएगा? हाफ इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी फ्रॉम इक्वेशन 1. यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे. सो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ? 80 इंटू साइन 45 कितना होता है? 1/√2, और उसका स्क्वायर कितना होगा? 1/2. तो साइन 45 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2, 1/√2 का स्क्वायर. सो यहाँ ये सॉल्व होगा. हमें पता चला कि इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में जो हाइट है बॉल जब थ्रो की गई तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 20 मीटर. यानी एक पर्सन जब 45 डिग्री एंगल पर बॉल को थ्रो करता है, 45, क्लियर, 45 डिग्री पर, अगर वो 80 मीटर रेंज गेन कर रहा है तो हाइट कितनी होगी बॉल की? 20 मीटर. ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है, यानी ये कहना चाह रहा है. इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कुछ ऐड करते हैं, और अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ. इस क्वेश्चन में अगर हम इस तरह से और पूछे, सपोज इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि एक पर्सन किसी बॉल को 80 मीटर डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है, अगर 80 मीटर डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक उसको थ्रो कर पाएगा. क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो लैंग्वेज में थोड़ा सा ही चेंज किया गया है. पिछले में तो पूछा था कि उसी सिनेरियो में कितनी हाइट ऑब्टेन कर रहा है. दूसरा, अगर मैं किसी बॉल को 80 मीटर दूर तक फेंक सकता हूं तो मैं उसी बॉल को ऊपर कितना मैक्सिमम थ्रो कर सकता हूं. जब हमें किसी बॉल को मैक्सिमम
अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना होता है तो हम पूरी स्पीड से थ्रो करेंगे, लेकिन एंगल कितना होगा, इस केस में हम वर्टिकल थ्रो करते हैं। क्लियर? हम अगर थोड़ा तिरछा थ्रो करेंगे तो दूर तो ज़्यादा जाएगा, लेकिन हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर मुझे मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है, मुझे ये पता करना है अपनी एबिलिटी कि मुझे कितना हाइट तक मैं किसी बॉल को थ्रो कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे बॉल को हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे थ्रो करना होगा, यानी बिल्कुल वर्टिकली उसको थ्रो करना होगा। ये गेट कर सकते हैं? तो अब हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वो पर्सन उसी बॉल को ऊंचा कितना फेंक सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तो वो 80 मीटर तक थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें हाइट कैलकुलेट करना है, यानी हम लीनियर मोशन को डिस्कस करेंगे। तो u²/g80 है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने ये कैलकुलेट किया था। यहां से हम कह सकते हैं कि u² जो होगा वो कितना हो जाएगा, 80g। क्लियर? सो हमें परसेंटली u² 80g पता चल गया, और हम u भी निकाल सकते हैं, √80g हो जाएगा। तो यहाँ से हम u की टर्म हमारे पास है, यानी हमें उसकी एबिलिटी पता चल गई। अगर मैं u की बात करूँ तो u कितना हो जाएगा, g अगर हम 10 ले रहे हैं तो u हो जाएगा √800 मीटर पर सेकेंड। ये उस पर्सन की एबिलिटी है कि वो बॉल इतना तेज फेंक सकता है, इससे ज्यादा नहीं फेंक सकता। क्लियर? सो दिस इज u। नाउ अगर हम वर्टिकली अपवर्ड किसी बॉल को थ्रो करें, देखना ध्यान से, मान लो हमने इस u स्पीड से बॉल को थ्रो किया, वैसे सिंपल है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लेंगे, पर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है ना? तो u से हमने थ्रो किया, हमें कैलकुलेट करना है कि बॉल कितना मैक्सिमम हाइट तक गई प्रोजेक्टाइल मोशन से डिफरेंट। ये जो सेकंड पार्ट है, दिस इज रिलेटेड टू लीनियर मोशन। ठीक है ना? कितनी हाइट तक जा रही है, u स्पीड से हमने थ्रो किया, h इज क्वेश्चन मार्क, h यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो हम जानते हैं इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड इस सिनेरियो के लिए कितनी हो जाएगी, 0। a इज इक्वल टू कितना होगा, -g। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इट इज रिटार्डेशन, और a इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो और अब हम देखिए तो हमें h कैलकुलेट करना है। बताओ यहाँ टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी हम थर्ड इक्वेशन से इसे सॉल्व करेंगे। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, फाइनल स्पीड इज 0, u² की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 800 प्लस 2 इंटू a कितना होगा, -10s, यानी h हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ हमारे पास 20h इज इक्वल टू कितना आएगा, 800, यानी h इज इक्वल टू 800/20, 10 कैंसिल आउट होगा, h कितना आएगा, 40 मीटर। ये आंसर क्या कह रहा है, ये आंसर ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन एक बॉल को अपनी पूरी ताकत से 80 मीटर दूर तक फेंक सकता है, तो वही पर्सन उस बॉल को ऊंचाई के हिसाब से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, 40 मीटर। पॉइंट समझ में आ गया? सो अगर किसी की एबिलिटी जस्ट हाफ होगी, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, अगर कोई पर्सन 100 मीटर दूर तक किसी बॉल को फेंक सकता है तो वो ऊपर कितना फेंक पाएगा, 50 मीटर। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट से काफी कुछ अच्छा हम सीख सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड थर्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूविंग to the next question, next concept, and the next concept is question number 4. Okay. क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। So next question is, okay, so in next question there is a building of height 500 meter. एक बिल्डिंग गिवन है, अच्छे से समझना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बिल्डिंग गिवन है और बिल्डिंग की हाइट जो है वो है 500 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 500 मीटर, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। एक बॉल को हमने थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v। ठीक है, जब इसको यहां से हम थ्रो करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर मूव करेगी कुछ इस तरीके से, और ये बॉल इस तरह से मूव करती हुई सामने जो दूसरी बिल्डिंग है, ये इस तरह से, यहाँ एक दूसरी बिल्डिंग है, हो सकता है कोई और हाइट हो, इसकी कम हाइट हो, तो सामने जो दूसरी बिल्डिंग है इसके एक विंडो में एंटर कर जाती है। यानी we are going to throw a ball horizontally with speed v from a building, from the top of a building of height 500 meter, और ये जो बॉल है ये सामने एक बिल्डिंग की एक विंडो में एंटर कर जाती है, और इस विंडो की हाइट की माने कि ये विंडो 10 मीटर ऊपर है। जमीन से उस विंडो की हाइट कितनी थी, 10 मीटर। इन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 100 मीटर। सेपरेशन कितना है इनके बीच में, 100 मीटर सेपरेशन है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट
एट व्हाट स्पीड दिस बॉल वॉज थ्रो, कि हमने इस बॉल को किस स्पीड से थ्रो किया था। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि 500 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से हमने एक बॉल को हॉरिजॉन्टल स्पीड देकर थ्रो किया है, स्पीड v है, और ये बॉल सामने दूसरी बिल्डिंग में एक विंडो में एंटर कर जाती है, और उस विंडो की जो हाइट है दैट इज 10 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है कि बॉल को हमने किस स्पीड से थ्रो किया गया होगा। क्लियर? सो अब इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं ले सकते, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा एडवांस है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वो यहाँ हेल्प करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो, हमने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होने को ये 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन हमें इसे कंसीडर करना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की तरह। बस इतना याद रखेंगे कि हमें जो भी इक्वेशन यूज में लेने हैं वो इक्वेशन अलग अलग डायरेक्शन के लिए हमें पहले सोच के रखना है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्स डायरेक्शन और वी आर गोइंग टू डिस्कस वाई डायरेक्शन। क्लियर? सो पहले हम यहाँ वाई डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस वाई डायरेक्शन। क्लियर? वाई डायरेक्शन में कौन सी चीजें हमारे पास हैं और क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वाई डायरेक्शन में देखें तो क्या हमारे पास इसका वाई डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल है। एस वाई यानी वाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल 500, वाई में इतना मूव किया इसने, कितना? 500 माइनस 10 यानी कितना होगा? 500 माइनस 10 इज इक्वल टू 490 मीटर। यानी हमारे पास इसका वाई डिस्प्लेसमेंट है। बॉल ने एक्स में कितना मूव किया? 100, लेकिन वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया है? वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड इसका मूवमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 490 मीटर। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो चूंकि बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कैसा कंसीडर करते हैं हम? पॉजिटिव। तो यहाँ हम पॉजिटिव लेंगे और एक्सेलरेशन कितना लेंगे हम? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो जी के इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम वाई डायरेक्शन की हेल्प से पहले टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, और हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स स्पीड तो चेंज होती ही नहीं है, एक्स एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक्स स्पीड में बेचारा एक ही फॉर्मूला काम करता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? तो हम उससे सॉल्व कर लेंगे यहाँ। सो टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यू वाई है, इनिशियल वाई स्पीड है, और इनिशियल वाई स्पीड कितनी है? 0, बिकॉज क्वेश्चन में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था। अगर हमने बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, इसका मतलब उसकी इनिशियल वाई स्पीड कितनी होगी? 0। सेम एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में भी होगा। जब हम एरोप्लेन से किसी बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे तो एरोप्लेन चूंकि हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो बॉम्ब की वाई स्पीड इनिशियल कितनी होगी? 0 होगी, और बॉम्ब की एक्स स्पीड हमेशा एरोप्लेन की स्पीड के इक्वल होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे वो। सो यहाँ हमें पता चला कि वाई वी के बारे में कोई बात नहीं है। बताओ कौन सा इक्वेशन यूज में लेंगे? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू ut plus half at square, sy is equal to uyt plus half ayt square। sy कितना है? It is 490 is equal to uy 0 plus half ay is 10 into t square। So 490, oh sorry, acceleration जो है हम 9.8 लेते हैं, ठीक है ना? एक्सेलरेशन यहाँ हम 9.8 काम में लेंगे, क्यों? क्योंकि 490 दिख रहा है, ठीक है? 49 के केस में वैसे तो गिवन हुआ क्वेश्चन में, पर यहाँ 10 से ज्यादा कन्वीनियंट कितना रहेगा? 9.8 को काम ले लेना, 9.8 काम में लो। यहाँ भी 9.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो अब देखो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो जाएगा 490 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 अपॉन 4.9, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड टी इज 10 सेकेंड। सो टाइम कितना हुआ? टाइम यहाँ पे हमारे पास आया 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड बाद ये जो बॉल है वो सामने वाली बिल्डिंग की विंडो में एंटर कर जाएगी। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब ये है कि हमें कैलकुलेट करना है कितने स्पीड से थ्रो किया गया था। तो अब तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया। अब हम एक्स डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं, और एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल होती है? बताओ, स्पीड इनटू टाइम के। डिस्टेंस कितना? एक्स डिस्टेंस कितना चलना पड़ा इसे? 100। स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। टाइम कितना है हमारे पास? 10। यहाँ कैंसिल आउट होकर साफ साफ दिख रहा है कि हमने 10 मीटर पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल स्पीड से बॉल को थ्रो किया होगा, तब जाकर ये बॉल 100 मीटर दूर किसी दूसरे बिल्डिंग में 10 मीटर ऊपर किसी विंडो में एंटर कर जाएगी। आई थिंक प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। हमने इसको एक इंटरेस्टिंग मेथड से सॉल्व किया। टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5. And in question number 5, यहाँ एक एरोप्लेन है. So we have an aeroplane in this question. ठीक है, फाइटर प्लेन है. और ये जो फाइटर प्लेन है ये मूव कर रहा है विद स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर. हमें गिवन है कि एक एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, और वो 360 किलोमीटर पर आवर के हॉरिजॉन्टल स्पीड से मूव कर रहा है. और ज़मीन से इसकी जो हाइट है वो गिवन है हमें कि ये जो हाइट है दिस इज 500 मीटर. आधा किलोमीटर ऊपर ही उड़ रहा है, 500 मीटर ऊपर. और ये फाइटर प्लेन यहाँ एक बॉम्ब ड्रॉप करता है. ठीक है, एक बॉम्ब इसने यहाँ ड्रॉप किया है. अब क्वेश्चन ये है कि ये हॉरिजॉन्टल मूव करता हुआ प्लेन जब एक बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो इस बॉम्ब का मूवमेंट कैसा होगा. ठीक है, इसके मूवमेंट को हम इजीली समझ सकते हैं. अगर इसने बॉम्ब ड्रॉप किया है तो ये बॉम्ब की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो प्लेन की इक्वली होगी. और जब बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे तो वो भी इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड रखेगा. चूंकि प्लेन की वाई स्पीड 0 है इसलिए बॉम्ब की वाई स्पीड भी कितनी होगी, 0 होगी. हम देख सकते हैं क्या ये बॉम्ब सीधा करेगा, नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा. और ये बॉम्ब मूव करता हुआ यहाँ करेगा इस पॉइंट पे. ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जाएगा. यहाँ पे गिवन है तो बॉम्ब की स्पीड भी यही होगी. वाई स्पीड कितनी होगी, 0 होगी. डिस्प्लेसमेंट वाई कितना है, 500 मीटर. हमें कैलकुलेट करना है कि ये बॉम्ब कितनी दूर जाके गिरेगा. और इस क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी हो सकती है कि पायलट को इस बॉम्ब को टारगेट से कितना पहले गिराना चाहिए ताकि ये बॉम्ब टारगेट पे जाके लगे, ताकि वो टारगेट को ठीक ठाक हिट कर सके. अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, सो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. अब रेंज कैलकुलेट हमें करना है. फिर मैंने कहा वही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. वाई एक्सिस से डिस्कस करो, एक्स एक्सिस से डिस्कस करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है ना, तो पहले वाई एक्सिस से हम डिस्कस करते हैं. वाई एक्सिस क्लियर. सो वाई मूवमेंट से डिस्कस करेंगे कौन कौन सी क्वांटिटीज, कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है. सबसे पहले हमारे पास बॉम्ब की इनिशियल वाई स्पीड है. यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे. वाई स्पीड कितनी है इनिशियल, 0. ओके, क्या हमारे पास वाई डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल है. कितना है, 500 मीटर. वाई डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 500 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है. ओके, सो एक्सेलरेशन वाई है, बिल्कुल है. कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बॉम्ब नीचे की डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव कर रहा है. और हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे टाइम, बिल्कुल पुरानी क्वेश्चन की तरह टाइम कैलकुलेट करते हैं. सेकंड इक्वेशन हम यूज में लेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर. एस वाई कितना है 500, यू वाई कितना है 0, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. 500 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर. टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. यानी हमें एक बात तो पता चली यहाँ कि जो बॉम्ब है वो 10 सेकेंड के बाद जो भी टारगेट होगा उस टारगेट को हिट करेगा. कितने टाइम बाद, 10 सेकेंड के बाद. पर 10 सेकेंड बाद हिट कर रहा है इसे. पर अभी हमें कैलकुलेट ये करना है कि कितना दूर गया होगा. तो दूर जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कौन सी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, एक्स डायरेक्शन. और एक्स डायरेक्शन बेचारी काफ़ी इजी है क्योंकि यहाँ कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं. तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू या रेंज इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कौन सी, एक्स स्पीड. सो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, रेंज स्पीड. चूंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. अगर हम एक्स स्पीड की बात करें सो वी एक्स इज इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. तो हम 5/18 से डिवाइड करेंगे. 18 से कैलकुलेट करेंगे कितनी टाइम से, 20. सो वी एक्स कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकंड. यानी जो फाइटर प्लेन है इसकी स्पीड कितनी थी, 100 मीटर पर सेकंड थी. तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई टी कितना है 10. सो बताओ रेंज कितना होगा, रेंज हो जाएगा 1000 मीटर. यानी कि उस एयरक्राफ्ट को, यानी कि उस प्लेन को जो बॉम्ब है उसे 1 किलोमीटर पहले ड्रॉप करना होगा, तब जाकर वो टारगेट को बिल्कुल सही से स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल सही से हिट करेगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ एक लास्ट कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं. न्यूमेरिकल तो बहुत बन सकते हैं, उसमें रेफरेंसेस में काफ़ी न्यूमेरिकल मिलेंगे, तुम्हें ट्राई करने हैं. एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा हम डिस्कस कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस. प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एयर
रेजिस्टेंस कि अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लिया जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्या इम्पैक्ट आता है। क्लियर? चलो, तो अभी तक जो भी हमने 99% मान लो तो 99% जो क्वेश्चन बनेंगे वो सब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं और हमने पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर ली, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस नहीं किया। जनरली ऐसा ही होता है, बुक्स में भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं होता है, पर एयर रेजिस्टेंस हर जगह एग्जिस्ट करता है। एयर रेजिस्टेंस को अवॉइड करके हम रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं। जनरली क्या होगा, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस हमारे आसपास कम होता है तो हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट में उस एयर रेजिस्टेंस के इम्पैक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस का प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और कौन कौन सी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो पहले जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को O पॉइंट से इस U स्पीड से थ्रो किया और हम अगर इसका पाथ बनाएं तो हम इस तरह से इसका पाथ बना सकते हैं। ये सिमेट्रिकल पाथ है और ये जो पाथ है ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, ठीक है ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हमने डिस्कस किया था, थीटा एंगल पे हम थ्रो कर रहे हैं, ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, अब अगर एयर रेजिस्टेंस, यहाँ भी जो हमने पाथ बनाया है इसमें हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना है। अगर एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करे तो एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को अपोज करेगा। एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को अपोज करेगा। एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को हम x और y दोनों मोशन के लिए चलो सेपरेट डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अगर हम x मूवमेंट के लिए एयर रेजिस्टेंस डिस्कस करें तो x डायरेक्शन में चूंकि स्पीड कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट ही होती है क्योंकि वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, हम देखें तो कोई दूसरा एक्सेलरेशन नहीं होता है, लेकिन अभी एक फोर्स एक्स्ट्रा आ गया है और ये फोर्स किसकी वजह से आया, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। और चूंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से आया तो ये स्पीड को डिक्रीज करेगा। छोटा मोटा जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से एक रिटार्डेशन जनरेट होगा जो ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में उतना दूर नहीं जाने देगा जितना दूर वो बिना एयर रेजिस्टेंस के जा रही है। यानी पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से रेंज तो क्या होगी, कम। पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, थोड़ा यहाँ इस तरह से मूव करता है और इस तरह से मूव करने के बाद इस तरह से वो पार्टिकल का पाथ होगा, यानी रेंज जो होगी वो थोड़ी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डायग्राम मैंने बनाया है ये है विदाउट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये हमने विदाउट एयर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था और सेकंड डायग्राम में एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ एयर रेजिस्टेंस होगा तो इस तरह से मूव करेगा और इस तरह से ये पाथ एंड करेगा। अब पॉइंट ये है कि x में तो हमने इजीली आइडिया लगा लिया कि x कंडीशन में जो रेंज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकंड अगर हम डिस्कस करें यहाँ कि y मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा इसका, ठीक है। अगर हम y मूवमेंट के लिए डिस्कस करें तो y मूवमेंट की कंडीशन में सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, ध्यान से समझना, अगर बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, नीचे फोर्स लगाता है, यानी कि फोर्स नीचे लग रहा है इसलिए उसकी स्पीड कम होती है। ऊपर से चूंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी दोनों फोर्स नीचे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है और एयर रेजिस्टेंस भी नीचे है, यानी अब स्पीड तेजी से डिक्रीज होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में जो लगने वाला टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट, वो भी डिक्रीज होगा। पहली चीज तो रेंज डिक्रीज होगी, टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पर डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गई, ऊपर जाने वाला टाइम कम लगेगा क्योंकि अब फोर्स बढ़ चुका है, ऑब्जेक्ट जल्दी से ऊपर पहुंच जाएगा। एक और चीज हमने यहाँ समझी कि हाइट भी क्या हो गई, कम हो गई। यानी हमने पहला इम्पैक्ट देखा कि अगर एयर रेजिस्टेंस है तो रेंज डिक्रीज होती है, अगर एयर रेजिस्टेंस है तो हाइट डिक्रीज होती है, अगर एयर रेजिस्टेंस है तो टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जाने में लगने वाला टाइम या टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट भी डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? नाउ जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, अब देखो mg जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो हमेशा नीचे ही लगता है, लेकिन ध्यान से सोचिए तो इस बार एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है, इसका मतलब mg नीचे काम करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है, यानी एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव वर्क करेगा। सो इस कॉन्सेप्ट में ओवरऑल जो डाउनवर्ड फोर्स है वो कम हो जाएगा। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट नीचे आने में, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो कम हुआ, लेकिन नीचे आने में जो टाइम है वो ओवरऑल थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन कम हो गया है, हाइट भी कम आना है। तो एयर रेजिस्टेंस से रिलेटेड ये जो डिस्कशन है बहुत ध्यान से समझने पर क्लियर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ टाइम ऑफ डिसेंट जो है TD जो
टाइम ऑफ डिसेंट वो क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, हम सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन अगेन लास्ट ये आया कि देखो एक जो है ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो गया, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या इफेक्ट जाना चाहिए कि अगर एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस चीज का टाइम ऑफ फ्लाइट पे, ये दो तो मैं बिल्कुल क्लियरली बोल सकता हूं कि डिक्रीज होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर एक कंडीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कंडीशन में क्या आया है कि यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट डिक्रीज हुआ है, टाइम ऑफ एसेंट इंक्रीज हुआ है, पर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिक्रीज होता है, क्योंकि टाइम ऑफ एक्सेंट जितना कम हुआ टाइम ऑफ डिसेंट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, पहले के कंपैरिजन में बढ़ेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो कि हाइट जितना उससे नीचे आना है वो डिस्टेंस भी चेंज हो गई है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखें, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो जाता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करें तो हम उसमें बायंसी तक भी डिस्कस कर सकते हैं, हम उसमें टर्मिनल स्पीड तक भी डिस्कस कर सकते हैं, पर उतना डीप जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है। इनिशियल स्टेज पे हम हैं तो हम देखेंगे कि रेंज डिक्रीज होती है, हाइट डिक्रीज होती है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी ओवरऑल डिक्रीज होता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसे हम क्लियर करें, एक और कॉन्सेप्ट हम ये देख सकते हैं, देखो इसका पाथ थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो ये पाथ बिल्कुल सिमेट्रिकल था, लेकिन एयर रेजिस्टेंस अगर है तो फिर ये जो पाथ है जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिमेट्रिकल नहीं रहा। शुरू में स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, बाद में स्पीड और तेजी से डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन की कॉन्सेप्ट में, तो शुरू में ये ज़्यादा दूर चल पाएगा, लेकिन सेकंड हाफ में ये उतना दूर नहीं चल पाएगा जितना ये फर्स्ट हाफ में चला था। तो थोड़ी बहुत यहाँ इसके सिमेट्री पर भी इम्पैक्ट जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। दिस वॉज द सेकेंड लेक्चर फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, सो कैरी ऑन विद योर स्टडीज। Don't forget to like, share and subscribe. Share it as much as you can with your friends. Thank you. See you in next class.